بسم اللہ الرحمن الرحیم. ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری. ناظرین، آج آپ کی ملاقات میں پاکستان کے سینئر صحافی، کالم نگار اور ماہر امور کشمیر سردار عاشق حسین سے کروانے جا رہا ہوں. آج میں سردار عاشق حسین صاحب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور آزاد کشمیر حکومت کی کارکردگی کے بارے میں بات کروں گا. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ انٹرویو پسند آئے گا. مسئلہ کشمیر میرے دل کے بھی بہت قریب ہے، اس لیے میں نے سردار صاحب سے اس مسئلہ پر انٹرویو لینے کا فیصلہ کیا ہے. اب ہم سردار صاحب سے سوالات کا آغاز کریں گے. سردار صاحب، ناظرین کو بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مقبوضہ وادی میں جاری کرفیو اور لاک ڈاؤن کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں. جی شکریہ زاہد شریف صاحب، آپ کا بہت ہی شکریہ اس لیے کہ آپ نے مظلوم جموں کشمیر کے عوام کی حالت زار کے بارے میں بے چینی آپ نے محسوس کی، اور اس سلسلے میں آپ میرے پاس آئے کہ میں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کروں. آپ کو پتہ ہے کہ 16 ماہ ہو چکے ہیں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد، اور 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے یہ قوانین جو 370 اور 35A جو ان کو ختم کیا گیا، اس کے بعد پوری ریاست کا لاک ڈاؤن اور محاصرہ شروع کر دیا گیا تھا. اگرچہ ان 16 ماہ کے دوران بڑی تعداد میں شہری مارے گئے، گرفتار ہوئے، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیلوں میں بند ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، کسی حد تک لاک ڈاؤن میں نرمی تو ہے، لیکن دوسری طرف کرونا وبا کے پیش نظر وہی لاک ڈاؤن جو ہے وہ پھر لمبا ہوتا جا رہا ہے. مواصلاتی رابطے منقطع ہیں اور لوگوں کی مشکلات روز بروز بڑھ رہی ہیں. یہ مشکلات جو ہوتی ہیں یہ کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ، ایک راستہ، ایک اپورچونٹی فراہم کرتی ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، کشمیری عوام قربانیاں دے رہے ہیں، اور سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی جان قربان کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 30 سالوں میں کوئی 95,000 سے زیادہ کشمیری حق کی خود ارادیت کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. یہ ان کا ولولہ ہے، یہ ان کی خواہش ہے اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق کی خود ارادیت کے لیے، اپنی شناخت کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود، ان قربانیوں کے باوجود، ان مسائل کے باوجود، ان کے حق خود ارادیت کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آتی. 5 اگست 2019 کا جو معاملہ سامنے آیا، اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ کشمیری قوم کے پورے جو کاز ہے اس کاز کو ایک معاشرے اور پابندیوں کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. معاشرے اور پابندیوں کے تناظر سے ہٹ کر ان کی شناخت بھی ہے، ان کا حق خود ارادیت بھی ہے جس کو سلب کیا گیا ہے، اور اسی کی بات کی جانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے نظر انداز کیا ہے جموں کشمیر کے عوام کی آواز کو، ان کی حالت زار کو. ملت اسلامیہ پاکستان اپنے طور پر کشمیریوں کے لیے بے چین ہے. زاہد شریف صاحب، آپ خود بے چین تھے، آپ میرے پاس آئے ہیں، اسی طرح پاکستان کا ہر شہری بے چین ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی جو بے چینی ہے اپنے بھائیوں کی ہمدردی کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی عملی تعبیر ان کی گورنمنٹ کتنا بنتی ہے، یہ ایک سوال موجود ہے. اس پہ بحث کی جانی چاہیے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داریاں اور اس نے جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. سردار صاحب، آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ یہ بتائیں کہ بابا حریت اور قائد حریت سید علی شاہ گیلانی کی صحت اس وقت کیسی ہے، اور میر وائز، مولوی محمد عمر فاروق، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، محمد اشرف صحرائی، مسرت عالم بٹ، نعیم احمد خان سمیت دیگر گرفتار اور نظر بند حریت رہنما کس حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ جی شریف صاحب، دیکھیے، کسی بھی معاشرے میں انسان کو چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، تقریر کرنے کی آزادی ہوتی ہے، بات چیت کرتا ہے آدمی، اور اس کو کہتے ہیں شہری آزادیاں. کا لوگ شہری ہیں.
पूरी दुनिया में गलगला है और पूरी दुनिया में शोर है कि फ़लाँ मुल्क जो है आज़ादियों का चैम्पियन है, शहरी हुकूक का चैम्पियन है। लेकिन इन सारी बातों के दरमियान अगर हम गौर करें तो हमें एक ऐसा खित्ता भी नज़र आता है कि जहाँ के शहरी 80-90 लाख लोग गुज़श्ता 15-16 माह से मैसूर हैं, उनकी क़यादत सारी बंद है। और ये खित्ता है जम्मू कश्मीर, और इस खित्ते में अभी कि जो बड़े हमारे लीडर हैं हुर्रियत क़यादत के, उनके नाम लिए हैं सैयद अली गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब, मीरवाज साहब और मसरत आलम भट्ट साहब का। हुर्रियत क़यादत जो है सफ़े अव्वल की जो क़यादत है यासीन मलिक, शबीर शाह और इसी तरह के तकरीबन 22-23 जो बड़े लीडरान हैं, उनको भारत की NIA एक उनकी एजेंसी है, तफ्तीशी एजेंसी या तहकीकी एजेंसी, उसने जाली मुकदमात में उनको बंद किया हुआ है। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में उनके मुकदमात चल रहे हैं, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और आसिया इंद्रावी जैसी जलील कदर खातून हुर्रियत पसंद भी उनमें मौजूद है। इनका कोई इखलाकी जुर्म नहीं है, आज़ादी मांग रहे हैं और आज़ादी के हक़ में अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं, और इस जुर्म की पादाश में उनको रखा गया वहाँ पे। सैयद अली गिलानी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो गुज़श्ता 8-10 साल से श्रीनगर का एक इलाका है हैदरपुरा में अपने घर में नज़रबंद हैं और घर से उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं है। और आपको पता है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी है और इंटरनेट और टेलीफोन की पाबंदियाँ हैं, इसलिए कोई मालूम नहीं हो रहा है कि उनकी सेहत कैसी है। कुछ ज़रियों से पता चला था कि वो सख्त बीमार हैं, आपको ये भी पता है कि उनके हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं 1-2। इसके अलावा भी उनको फेफड़ों का मसला भी दरपेश है, शुगर के अमराज भी हैं, और फिर उनकी उम्र भी कम बेश 85 और 90 साल के दरमियान है, और सर्दी बहुत होती है वहाँ पे। आपको पता है कि अली गिलानी साहब जब नज़रबंद नहीं थे तो हर साल सर्दियाँ गुजारने के लिए दिल्ली या कहीं और जाते थे जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बेहतर होता था। लेकिन इस दफ़ा चूँकि वो घर से भी नहीं बाहर निकल सकते, उनकी ज़िंदगी को एक तो भारतीय फ़ौज से ख़तरा है और दूसरा मौसम से बहुत ख़तरा है। अल्लाह ताला उनका साया हम पे बरकरार रखे और वो हमारी क़यादत करते रहे। मसरत आलम भट्ट साहब का जिक्र किया था आपने। एक ज़माने में सैयद अली गिलानी साहब के जानशीन के तौर पे इनका नाम सामने आया था, और ये बड़े मुतहर्रिक और नौजवान लीडर थे। मुस्लिम लीग इनकी जमात है, और जम्मू कश्मीर में जलसे जुलूसों में ये सफ़े अव्वल में होते थे और भारतीय फ़ौज को बड़ा टफ टाइम देते थे। एक तो फ़िक्री लिहाज से चूँकि ये एक सियासी लीडर के तौर पे जाने जाते थे। ये भी गिरफ़्तार हैं, और कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मसरत आलम भट्ट को रहा किया जाए, लेकिन रहा नहीं किया जाए। इसकी भी एक वजह यह है कि देखिए, कोई शख्स हमें अगर बुरा लगता है तो उसको जेल में डालने का तरीका ये होता है कि उस पर जुर्म को पता चल जाए कि इसने ये जुर्म किया, उस जुर्म के तहत उसको कैद करके जेल में डाला जाता है। लेकिन अजीब व गरीब और ज़ालमाना कानून है मकबूजा कश्मीर में राइज है, जिसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट कहते हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इंतज़ामिया को यह अख्तियार हासिल होता है, डिप्टी कमिश्नर को बिलखसूस, कि वो अगर समझें कि जाहिद शरीफ साहब अच्छे आदमी नहीं है, हमें अच्छे नहीं लगते, ये कहीं तकरीर कर देंगे, हमें वो मुश्किल हो जाएगी, तो वो डिप्टी कमिश्नर एक ऑर्डर जारी करता है कि जाहिद शरीफ साहब को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाए। 2 साल के तक इस ऑर्डर के तहत वो शख्स जेल में रखा जा सकता है। इस के ख़िलाफ़ यानी किसी अदालती कार्रवाई के ख़िलाफ़, यानी मावराए अदालत ये सज़ा होती है। उन पे जो मसरत आलम भट्ट साहब थे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट ही लगा था, उनको जेल में डाल दिया था। 2 साल पूरे होते हैं तो नया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको उसमें जेल में डाल दिया जाता है। उनको मेरे ख्याल में कोई 5, 7 या 8 बार उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग चुका है, और इसी तरह दूसरे लोगों के खिलाफ भी हो रहा है। यासीन मलिक साहब जो हैं वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नहीं बल्कि वो NIA के हाथों गिरफ्तार हैं और नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद हैं। ये जो कैदी भारत की जेल में डाले जाते हैं, इनको पेशावर मुजरिमों के साथ रखा जाता है, क्योंकि ये सियासी कैदी होते हैं और ये कोई
कोई जुर्म करके नहीं आए होते, बल्कि अपनी कौम का मुकदमा लड़ रहे होते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान का मुकदमा भगत सिंह लड़ रहा था, नेहरू लड़ रहा था, गांधी लड़ रहा था, ये उसी तरह के हमारे लीडर हैं जम्मू कश्मीर के। और जब कभी कश्मीर की आज़ादी का जो जदोजहद है मन तक इंजाम तक पहुँचेगी, तो ये लीडर भी हमारे उसी तरह होंगे जिस तरह हिंदुस्तान में गांधी को समझते हैं या भगत सिंह को कहते हैं, ये भी उसी पाई के लीडर हैं। तो ये खैर आने वाला वक्त इनकी सच्चाई और इनकी अजमत को साबित करेगा इंशाअल्लाह। सरदार साहब, आपसे अगला सवाल मैं करूँगा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम किस तरह शदीद सर्दी और बर्फ़बारी के मौसम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनका गुजर बसर किस तरह चल रहा है? देखिए जायशी साहब, एक तो ये है कि वो सख्त निगरानी में हैं। भारतीय फ़ौज गली कुछ हर जगह मौजूद है और मासरे हैं, तलाशियाँ हैं, छापे हैं, ये सारा कुछ सिलसिला पहले भी जारी था और 5 अगस्त के बाद ज़्यादा और हो गया है। अब सर्दियाँ भी आ गई हैं और इन सर्दियों में वहाँ पे आपको पता है कि बल्दियाती इंतखाबात के नाम पे एक मंसूबा चल रहा है, और वो मंसूबा ये है कि बीजेपी को किसी न किसी तरह वहाँ पे निचली सतह पर इक़्तिदार में लाया जाए, और ताकि असम्बली के जब इलेक्शन हो तो असम्बली के इलेक्शन में वो जीते। तो इन इंतखाबात के लिए इजाफी भारतीय फ़ौज भी वहाँ लाई गई है, और कम बेश मेरे ख्याल में 9 लाख से ज़्यादा भारतीय फ़ौज वहाँ पे मौजूद है। छापे हैं, मासरे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग घरों में परेशान बैठे हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं, और जो लोग वहाँ पे एक फ्रूट इंडस्ट्री है जो उनकी माशियत को सहारा देती है, लोगों का गुजर बसर होता है, सेब उगाए जाते हैं, अखरोट की फसल है, इसी तरह और चीज़ें हैं, ये सिस्टम भी ख़त्म किया जा रहा है जानबूझ के कि जम्मू कश्मीर के अवाम माशी तौर पे कमज़ोर हो जाएं ताकि वो हमारा मुकाबला न कर सकें। एक तो ये पहलू है। दूसरा, आपको पता है सर्दी है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है। आज ही मैं ख़बरें देख रहा था वहाँ की, तो श्रीनगर में तकरीबन 5 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। इस बर्फ़बारी के मौसम में जब टेम्परेचर माइनस होता है, आप लोगों की बिजली बंद कर दें। वहाँ पे श्रीनगर और दीगर वादी के अजला में आज बिजली बंद है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग किस सूरत में, किस मुश्किल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये एक मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल में लोग वहाँ पे एक उनके जज्बे जमा हैं, उन जज्बे की बुनियाद पे ये मुश्किल सूरत भी वो उसको फेस कर रहे हैं। सरदार साहब, मैं आपसे अगला सवाल करूँगा। हुकूमत पाकिस्तान की मसला कश्मीर के हवाले से पॉलिसी और कारकर्दगी पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हुकूमत मसला कश्मीर को आलमी बरादरी के सामने मौसर अंदाज में पेश करने में कामयाब हुई है कि नहीं? देखिए, मसला कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है और उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान को मिलाएंगे, तो सबसे पहली बात ये, कामयाबी और नाकामी से पहले एक जो चीज़ आती है कि आपकी सिमत कौन सी है, आपकी डायरेक्शन कौन सी है, आप क्या समझते हैं कश्मीर का मसला क्या होना चाहिए, ये डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की सिमत और डायरेक्शन के बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम मायूसी का शिकार हैं बहैसियत कश्मीरी। अगर हुकूमत पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त होगी और उसका सफ़र दुरुस्त सिमत में होगा तो ठीक है, कोई सी सिमत से आपको हमायत नहीं भी मिलेगी, लेकिन मुस्तक़बिल में उसकी उम्मीद हो सकती है। और फिर ये कि हमायत हासिल करना मुश्किल काम है। आर्मी बरादरी में आप जाएंगे, नाकामी भी होती है, कामयाबी भी होती है, लेकिन डायरेक्शन दुरुस्त रखना ये ज़रूरी होता है। डायरेक्शन दुरुस्त रखने की बात यह है कि 5 अगस्त 2019 तक हुकूमत पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम का हक़ खुद इरादियत मुक़द्दम था। 5 अगस्त 2019 तक हुकूमत पाकिस्तान इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वादी लद्दाख, जम्मू, ये सारा इलाका शामिल है, इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दे रही थी हुकूमत पाकिस्तान। और ऑफिशियल स्टांस ये था कि इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड है और इसका फैसला रायशुमारी के ज़रिए होना है। आप देखते हैं कि गुज़श्ता नवंबर में इंतखाबात हुए गिलगित बल्तिस्तान में, और वो इंतखाबात किस नज़रिए पे और किस नारे पे जीते गए, और वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान सूबा डिक्लेयर करेगी। अगर आप सूबा डिक्लेयर करेंगे तो आपने माजी में इसी खित्ते को
डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है उसमें डिक्लेयर किया हुआ है, रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार दिया हुआ है, तो फिर आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी को सूबा डिक्लेयर करेंगे तो फिर हिंदुस्तान ने जो काम किया है जम्मू कश्मीर को तकसीम करके 2 यूईटी यानी यूनियन टेरिटरी बना के हिंदुस्तान में जम कर दिया, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रहा, फिर इम्तियाज़ क्या रहा, फिर तफरीक कैसे करेंगे, और फिर इखलाकी तौर पर आपका दर्जा आगे गया या पीछे गया, ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। जनरल असद दुरानी साहब का एक इंटरव्यू पिछले दिनों बीबीसी पे आया था और उनसे यही पूछा गया था कि ये सूबा क्या, तो उसने कहा जी कि जब मैं आईएसआई का सरबराह था तो उस वक्त ये मामला ज़ेर बहस आते थे और मुझे जो मुशीर वहाँ पे बैठे हुए जो मुझे मशवरा देते थे वो ये कहते थे सब चीज़ें बेशक छीनना, लेकिन ये खेलना सूबा न बनाना, इस तरह रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम का जो केस है, जम्मू कश्मीर के हक़ खुद इरादत का जो केस है वो कमज़ोर होगा। तो काफ़ी अरसे तक खुद पाकिस्तान की यही पॉलिसी रही और अब यकदम हिंदुस्तान ने एक इकदाम किया तो पाकिस्तान भी जवाब में यही इकदाम करना चाह रहा है। 1 अक्टूबर को वज़ीर आज़म साहब जनाब इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान गए थे और वहाँ पे उन्होंने ऐलान दोबारा किया था। इससे पहले भी किसी हद तक मबहम सा हुआ था कि GHQ में कोई मीटिंग हुई है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी हम सूबा बनाने जा रहे हैं। वहाँ के लोगों को एक झांसा दिया कि सूबा बनाने का, सूबा बनाए बगैर भी वहाँ के लोगों को हुकूक दिए जा सकते हैं, वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ दी जा सकती हैं, असम्बली दी जा सकती है, एक सेटअप दिया जा सकता है, ज़्यादा बावकार सेटअप दिया जा सकता है, आज़ाद कश्मीर के अवाम को दिया गया है, इसी तरह का दिया जा सकता है, दोनों खित्तों को मर्ज करके एक नया सेटअप बनाया जा सकता है। लेकिन इस टेरिटरी को डिस्प्यूटेड रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने कश्मीर केस को ख़त्म कर देना है, उसके बारे में अपने स्टांस को तब्दील करना है तो फिर ठीक है, ये काम सही है, हिंदुस्तान ने कर दिया, आप भी कर दें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के कुछ ज़िम्मेदारान मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तनाज़ुर में सोचते हैं और क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी कि जम्मू कश्मीर में भारत नवाज जमातों का एक इत्तेहाद है जिसको गफ्कार अलायंस कहते हैं, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और ये इस तरह के 5-6 जमातों के बड़े रहनुमा हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया है। उन्होंने कहा हम जब 35 से और 370 के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, उसको बहाल करेंगे, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा था। भाई उनका स्टांस तो देखें, उनका एलानिया तो देखें, उनकी ज़बान को देखें, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत से हमने हलाक किया हुआ है और भारत का हम हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहते हुए हमें ऑटोनॉमी, जिसका उर्दू में होता है अंदरूनी खुद मुख्तारी, हमें अंदरूनी खुद मुख्तारी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी अंदरूनी खुद मुख्तारी का मुतालबा नहीं किया, पूरी रियासत के अवाम के हक़ खुद इरादत की बात की और इसीलिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और पाकिस्तान यही इसी पॉइंट पे उनकी हमायत करता रहा है और यही पॉइंट दोहराता रहा है कि उनका हक़ खुद इरादत। अब आप पूरी रियासत के हक़ खुद इरादत को छोड़ के ऑटोनॉमी पे आ गए। और फिर ये मोहित पीरज़ादा साहब के नाम से एक शख्सियत उनकी काबीना में मशीर है या जो भी है वो भी शामिल है। हाँ, उन्होंने भी एक तकरीर में कहा जी कि ये बेहतरीन चीज़ यही है कि उनकी ऑटोनॉमी बहाल कर दी जाए और कुछ लोगों ने कहा है जी कि शायद हिंदुस्तान ऐसा कर देगा। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर के 95,000 या इससे ज़्यादा जितने लोग शहीद हुए 30 सालों में, तो फिर उनका कोई कुर्बानियों का मकसद नहीं था। अगर आपने ऑटोनॉमी बहाल करनी है, ऑटोनॉमी तो भारत 70 की दहाई में भी देने के लिए तैयार था, 90 की दहाई में देने के लिए तैयार था। जनरल मुशर्रफ से ऑटोनॉमी में भी बात की हो रही थी और क्या था वो इसी बात पे दोनों वज़ीर ख़ारजा उस वक्त के उन्होंने कहा था जी कि हम किसी हल के करीब पहुँच चुके थे। हल के करीब क्या पहुँच चुके थे कि अपनी हुक्मरानी के तसव्वुर से एक तसव्वुर दिया गया था कि रियासत के खित्तों को ऑटोनॉमी दी जाए, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए और फिर उन खित्तों को इस तरह एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाया जाए कि होंगे वो इसी स्टेटस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एतमाम, लेकिन श्रीनगर का बंदा मुज़फ़्फ़राबाद में अजनबी महसूस नहीं करेगा और मुज़फ़्फ़राबाद वाला श्रीनगर में अजनबी महसूस नहीं किया जाएगा। इस तरह की कोई चीज़ थी, लेकिन थी वो ऑटोनॉमी जिसको सेल्फ रूल कहते हैं, यानी अपनी हुक्मरानी। तो आप अगर हक़ खुद इरादत को छोड़ के अपनी हुक्मरानी पे आएंगे, आप अगर
पूरे जम्मू कश्मीर को छोड़ के, शारा जम्मू कश्मीर को छोड़ के श्रीनगर के पीछे लग जाएंगे। आपने शारा का नाम भी तब्दील कर दिया, क्या ज़रूरत थी? जम्मू कश्मीर पूरे को छोड़ के आपने श्रीनगर लिया। आपने एक इसकी कोई तोजी, इसकी कोई वजह, उसकी कोई तशरीह मुझे समझ में नहीं आती है। जाहिर साहब पता नहीं कैसे मशीर बैठे हुए हैं, क्या करते हैं, कि उनको कौन मशवरा देता है और किसके मशवरे पे क्या पॉलिसियाँ बनती हैं, कोई समझ है ही नहीं, कोई सिर पैर होता ही नहीं इनकी बातों का। सरदार साहब, इससे आगे मैं बढ़ता हूँ तो आपसे मैं आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है या नहीं है, और उनको मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या तजावीज़ देना चाहते हैं? जी शेर साहब, देखिए आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और तकरीबन उसका टाइम पूरा होने वाला, अगले साल शायद इलेक्शन भी होंगे। इन 5 सालों की एक पॉजिटिव बात यह है कि ये हुकूमत जब आई थी तो वहाँ का बजट तकरीबन 80-90 अरब के करीब होता था और वो बढ़ के 1 खरब और 1 खरब प्लस हो गया है। मेरे ख्याल में 25 अरब, 1 खरब 25 अरब या कुछ इसके करीब बन गया। फिर वहाँ का तरक्याती बजट जो 8-10 अरब होता था वो 25 अरब से ऊपर चला गया। इसी तरह वहाँ और भी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। बजट, ज़ाहिर बजट बढ़ता है तो बाकी शोबे भी इम्प्रूव करते हैं, उनका बजट भी ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब बदकिस्मती ये है कि आज़ाद कश्मीर का इंतज़ामी ढांचा, वहाँ का इंतखाबी सिस्टम कुछ इस तरह का है और लोगों की कुछ साइकी इस तरह बन चुकी है कि पाकिस्तान में जो जमात हुकूमत कर रही होती है, जो हुकूमत जिसकी होती है सिटिंग, उसके होते हुए आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होंगे उसमें वही जमात जीतेगी जो पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आएगी। इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं, इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। पॉजिटिव पहलू ये हैं कि पाकिस्तान में जो जमात हुकूमत कर रही होती है वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, तो उनका आपस में निज़ाम रखना आसान होगा। आज़ाद कश्मीर वालों को फंड्स मांगने होते हैं इधर से और काम निकलवाने होते हैं, तो अगर अपनी हुकूमत होगी तो ये काम आसानी से होगा। नुकसानदायक बात यह है कि जो भी गलत काम हो रहा होगा, पाकिस्तान की गलत सोच हो रहेगी, तो उसकी इंडोर्समेंट भी उधर से होती हुई होगी। पाकिस्तान की जो गलत पॉलिसी होगी उसकी भी उधर से हाँ में हाँ मिलाई जा रही होती। तो ये एक प्रॉब्लम्स मौजूद है। इसका तरीका ये था, मरहूम खालिद इब्राहिम साहब ये कहते कहते अल्लाह के यहाँ पेश हो गए कि आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी सिस्टम इस तरह बनाया जाए कि जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात हों तो आज़ाद कश्मीर कौंसिल असम्बली के इंतखाबात भी हों, ताकि आज़ादाना तौर पे किसी दूसरे के इशारे पे, किसी दूसरे के कहने पे, किसी दूसरे की मर्ज़ी पे या ना कोई हुकूमत बने और ना इस सिलसिले में कोई काम हो। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सका। मुस्तकबिल में मेरे ख्याल में अगर ऐसा होगा तो शफाफ इंतखाबात बड़े यकीनी हो जाएंगे। तरक्याती काम बिल्कुल हो रहे हैं, वहाँ पे रोडें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं। मेरे अपने शहर में एक नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन रहा है। मैं रावलाकोट से माजी में 5 साल पहले या 10 साल पहले रावलाकोट जाता था, 5-6 घंटे लग जाते थे। अब अपनी गाड़ी पे अगर बैठें तो अढ़ाई नहीं तो 3 घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। तो इसका मतलब है रोड नेटवर्क अच्छा हुआ है। जो बैन अज़लाई सड़कें हैं या पाकिस्तान से मिलने वाली सड़कें हैं वो तो बहुत ही अच्छी हैं और वो मज़ीद इम्प्रूव हो रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो छोटी नेटवर्क होता है, गाँव की सतह है, उस पर गवर्नमेंट की तवज्जो है। अस्पताल भी बन रहे हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं, इसी तरह बन रही हैं जिस तरह पाकिस्तान में काम जारी है मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहाँ पे भी जारी है। और मुझे यकीन है कि ये तसलसल जारी रहा, उनके फंड्स में इजाफा हुआ तो कोई भी गवर्नमेंट हो वो बेहतर करके देगी इंशाल्लाह। सरदार साहब आखिर में मैं आपसे मज़लूम कश्मीरियों की मदद के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आपका जो सवाल है पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, तो मैं इस सवाल से इत्तफाक नहीं करता। मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के गयूर अवाम से, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान से। यही अवाम हैं जो एक हुकूमत के लिए अपने नुमाइंदे चुनते हैं और हुकूमत बनती है, और इसी
इन्हीं नुमाइंदों के बुनियाद पे जो हुकूमत बनती है, उसी हुकूमत का एक इंस्ट्रूमेंट होता है फ़ौज। ये मेरे ख्याल में ज़ैली चीज़ें हैं। असल चीज़ है पाकिस्तान के अवाम। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों के साथ थे, उनकी हमदर्दियाँ थीं, अब भी हैं। वो कश्मीरियों के लिए बेचैन रहते हैं और कश्मीरियों के लिए अपनी हमदर्दी महसूस करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2005 का ज़लज़ला। 2005 में आज़ाद जम्मू कश्मीर में और KPK में ज़लज़ला आया था, लोगों के घर तबाह हो गए, परेशानी का शिकार थे। तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की औरतों ने अपना सब कुछ नछावर कर दिया था। रावलाकोट मुजफ्फराबाद जाने के लिए गाड़ियों के रास्ता नहीं मिलता था, इस तादाद में लोग सामान लेके पहुंच रहे थे। औरतों ने अपने जेवर उतार के पेश कर दिए थे उस फंड्स में। ये तो मोहब्बत है, इस मोहब्बत का हम जवाब नहीं दे सकते। ये उनके जो पाकिस्तानी अवाम की जो दिलचस्पी है और जो वो हमारे बारे में सोचते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, और हम समझते हैं कि ये हमें ये सपोर्ट मिलती रही होगी। इसी सपोर्ट की बुनियाद पर शायद हमें आगे खुदराजियत भी मिलेगा। जी सरदार साहब, मेरी दुआ है कि कश्मीरी जल्द अज जल्द अपनी जद्दोजहद आज़ादी में कामयाब हों और उन्हें आज़ादी की सुबह देखना नसीब हो। आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह करने के लिए वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ पहुँचती रहें। शुक्रिया।